Hello friends, welcome back in math class. You know, yesterday I was teaching about the percentage. In percentage, I had discussed about the definition of percentage. So again, I want to remind percentage derived. One thing more I had told you. Percentage word has been taken from Latin word percentum, meaning in 100 or per 100. That means the quantities about whom we wants to find. We have to find what will be the quantity of this thing in 100. If we will able to find the quantity of that things in 100, that will be percentage. So let us see. I had discussed about 3 topics. One of them is how will you change a fraction into percentage, and second thing I had discussed how will you change any decimal number in percentage, and express the following percentage as decimal, and express the percentage fraction and ratio. There are 3 types questions in your exercise number 11.2. Today I have taken. So let us see. हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए या किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो इट्स वेरी सिंपल. हियर I have taken one question from your exercise number 11.2. You have to change 6 upon 25 into percentage. So what you have to do? That means this is fraction to percentage. What you have to do? You have to multiply by 100. 6 upon 25 multiply by 100. Now you have to simplify it. 25 for the 25, 25 for the 100. Now 6 for the 24. This is very simple. This is your answer. What is answer? 24%. So same like this, you can find others fractions percentage. So I am going to take one more questions. Question number D. Question number D is given 12 upon 125. This is question. What you have to do? I have just told you have to multiply by 100. So let us multiply 125 multiply 100. Now again you have to simplify it. 25 5 ja 125 and 25 4 ja. It's clear. Now what you will do? 12 multiply 4, because there is no any digit which can be simplified. So let us multiply it. 12 4 ja 48 upon 5. Now you have to divide in 48 by 5. Let us divide 48 divide 5. 5 9 ja 45. Remainder will be 3. Now you will put here a point and you will bring down a 0. Now a table of 5, how many times we have to read? 5 6 30. 5 6 30. So this is solved is equal to 9.6%. This is your answer. That means अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है जिस चीज का, वो एज ए न्यूमरेटर लिखा जाएगा और
जिसका परसेंटेज और टोटल क्वांटिटीज जो है वो ऐसे डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, और ऐसा करने के बाद आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है। अगर दूसरी चीज, एक क्वेश्चन इसमें ई वाला दिया गया है, ई वाले में आप देख रहे हैं कि देयर इज ओनली डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर 0.08। वेरी सिंपल। हमने भी बताया था आपको कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई परसेंटेज से में बदलने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100 हियर आल्सो। यू नो after 8 you will put 20 and after how many digit we have to put the point 1, 2 digit 1 2. This is 8.00. you can write it as only 8. this will be answer. अगर डेसिमल नंबर है तो आपको केवल 100 का मल्टीप्लाई कर देना है और आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन है तो उसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका केवल डेसिमल नंबर है तो बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड, सो लेट अस सी हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज गिवन कन्वर्ट द फॉलोइंग percentage to fraction and ratio। अब परसेंटेज एंड रेशियो देखिए, इसमें क्या था, एज ए परसेंटेज था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। आपने देखा था यहां पर फ्रैक्शन दी गई थी। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग percentages to fractions, following percentages to fractions and ratio, fractions and ratio। इसमें एट फर्स्ट जो दिया गया है उसको फ्रैक्शन बदलना है और फ्रैक्शन में बदलने के बाद रेशियो में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल है। पहला दिया गया है ए 30%। Yesterday when I was teaching you that time I had told you, अगर आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो उसमें लगे हुए सिंबल को रिमूव कर देते हैं। अब आइए देखते हैं, सिंबल को हटाएंगे, ये ओनली 30 हो जाएगा और हटाते ही आप अपॉन 100 कर देंगे, ये 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ यू हैव टू, 0 विल बी कैंसिल बाय 0। व्हाट इज रिमेनिंग? 3/10। दिस इज 3/10 and according to question he is ordering you have to change as a fraction। कह रहा है फ्रैक्शन में बदलो, तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑलरेडी ये आ चुका है। उसके बाद एक चीज और लिखता है, इसको रेशियो में भी कन्वर्ट करो। तो रेशियो, फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो होता है, तो 3/10 यू कैन राइट एज 3/10। ये आपके दोनों आंसर आ गए, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज। आप इजीली इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/10 को 3/10। तो क्या करना है, 2 तरह के क्वेश्चन हमने बताए,
पहला क्वेश्चन है जब फ्रैक्शन होगा और उसको परसेंटेज में बदलना होगा तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। दूसरे तरह के क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज देखिए आया। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब अपान होता है। तो आपने देखा कि 30/100 हमने कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 3/10 आ गया। कहा था रेशियो में लिखने के लिए, तो 3:10, बहुत ही सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, करा एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब यहाँ पर भी परसेंटेज दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, जैसे इसमें परसेंटेज है और इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही दिया गया है। लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है इन दोनों क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में था, कह रहा था कि फ्रैक्शन में चेंज करना है और रेशियो में चेंज करना है, बट हियर किस में चेंज करना था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग percentage as decimal। अब आपको डेसिमल में बदलना है। तो क्या इसमें कुछ नया करना है? कुछ नहीं। जैसे आपने यहाँ इसी को ले लेते हैं, ये 30% आया, इसको आपने कन्वर्ट किया 3/10 आया, 3/10 ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल दीजिए। बहुत बार आपको पढ़ाया गया है, 3/10 का अगर डेसिमल पूछा जाता तो ये 1 डिजिट पर पॉइंट लग जाता, 0.3 हो जाता। आइए एक एग्जांपल लेकर के इससे आपको बताते हैं। जैसे बी वाला ले लेते हैं। बी में लिखा है 7 होल 1/2%, 7 होल 1/2%। इसको सिंबल को हटाइए, 7 2 14 और इसको लिखा जाता है 15/2% लिखा जा सकता है। हमने कहा था कि सिंबल को हटाइए तो 15/2 बच जाएगा, और फिर हमने कहा था कि अपान 100 कर दीजिए, अपान 100 हमने कर दिया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 3 15 और 5 2 ये 20 हो गया, 20 2 40 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3/40। 3/40 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको 3 में 40 का डिवाइड करना पड़ेगा। 40 का यहाँ से पॉइंट ले जाइए, 0 लाएंगे, डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 ले जाएंगे, और फिर 7% आप ले जाएंगे यहाँ पर 7, तो हो जाएगा 280 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे 0, 10 - 8 2 आएगा, और फिर एक 0 लाएंगे, उसके बाद 5% जाएगा, और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा आपका। तो कितना निकल कर का आया? 0.075 आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0.075। ये आपका हो गया आंसर। कहा था डेसिमल में बदलो, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी में 0.075। दैट मीन्स यू हैव टू change at first in fraction, after that you will change in decimal. So note down your homework. Complete exercise 11.1. That's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.